ਹੈਲੋ एवरीवन ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸੀ ਟੈਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀ ਟੈਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਚ ਟੈਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਹੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਪੀ ਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ, ਐਚ ਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ, ਸੀ ਟੈਟ 'ਚ ਈਵਨ, ਔਰ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਟ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ। तो अज का अपना टॉपिक है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ RPWD एक्ट 2016 ਦਾ ਐਕਟ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। पढ़ते हैं तो फर्स्ट पॉइंट में की लिखा है, देखो द एक्ट वॉज इंटैक्ट बाय राज्य सभा ऑन 14 दिसंबर 2016 एंड बाय द लोक सभा ऑन 17 दिसंबर 2016। ठीक है, तो एक्ट ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਦ ਐਕਟ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਦ ਫੋਰਸ ਔਨ 30 ਦਸੰਬਰ 2016। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਐਕਟ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਡੇਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਡੇਟ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ 2016। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 30 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, RPWD ਐਕਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਬਣਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਰਿਪਲੇਸਿਸ ਦ ਓਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਸੀ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ 1995। ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੀ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ 2016। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡੇਟ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ 2016। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਇਟ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਡਿਸੇਬਲ ਚਿਲਡਰਨ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਅਡਲਟ। ਕੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਭਾਵੇਂ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਵੂਮੈਨਸ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਡਲਟ ਹੋਣ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਸਟ ਬੀ ਫ੍ਰੀ ਅਪ ਟੂ 18 ਈਅਰਸ। ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ 6 to, तो ऑफकोर्स इसको राइट करो 6 to 18 ईयर्स जी अपनी। ठीक है, 18 ईयर्स तक इस एक्ट ने कहा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए है। तुहानू डेट ऑफकोर्स तुहानू इसकी ये वाला ईयर पूछ सकता है कि कितने, ऑप्शन आ सकता है कि 6 to 14 है, 6 to 15 है, 6 to 18 है। सो तुहानू पूछेगा कि एक्ट ने कदों तक कहा कि एजुकेशन फ्री, तो तुसीं करना है 6 to 18 ईयर्स। क्लीयर है जी। अगला पॉइंट है अपना इंक्लूसिव प्रोविजन्स इज ऑर्डर्ड एंड रिक्वायर्ड लर्निंग मटीरियल एड्स मैथड्स एंड एक्सपर्ट विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, मतलब इस एक्ट का है कि इंक्लूसिव कल्चर नूं आपां सैटअप करना है। ठीक है, और जे अगर इंक्लूसिव कल्चर आपां सैटअप करना है, इंक्लूसिव स्कूल बनाना है, तो आपां जो भी रिक्वायर्ड मटीरियल होएगा, एड्स होणगे, मैथड होएगा, कोई एक्सपर्ट नूं बुलाना है, तो सारा कुछ प्रोवाइडेड किया जाएगा। क्लीयर है जी। अगला फोर्थ पॉइंट देखो, कहता द न्यू एक्ट ले कंप्लीट इम्फाइसिस ऑन वनस राइट। किसके राइट से, राइट टू इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी, कि डिसेबल परसन नू राइट है, राइट ऑफ इक्वालिटी है कि इक्वल है वो। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ ही राइट है, राइट टू
ओन प्रॉपर्टी खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है उन्होंने, राइट टू होम एंड फैमिली एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स अमंग दैम, ठीक है, राइट्स है उन्होंने फैमिली, अपनी फैमिली भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला है डिसेबल फ्रेंडली असैस कि अपना कि जी डिसेबल कि कोई भी जोड़ा उधर इन्वायरमेंट है अपना डिसेबल फ्री इन्वायरमेंट करना है, कि कोई रोकदाम नहीं लगाना, कि उन्होंने कोई भी तुसी उन्होंने कोई अब्यूज़ नहीं करना, ਜਾਂ उन्होंने सैग्रीगेट नहीं करना। सब तो बड़ी एक वर्ड यूज़ करना है कि सैग्रीगेट जो वर्ड इन्होंने किया उसनों रिमूव किया, ठीक है, एक्सक्लूजन नहीं करना, ठीक है। उन्होंने जो एक्ट बनया 2016 च उन्होंने कहा कि 2019 तक, ठीक है, 2019 तक अपन डिसेबल्ड फ्रेंडली असैस बनाना है, क्लीयर है। तो 2019 तो हो चुके हैं, तो अपनी मतलब इसके 2 साल के अंदर अंदर ही आपू अपने एक्ट नू लागू करना सी कि आपू डिसेबल्ड फ्रेंडली असैस करना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो अपना, पाथ ब्रेकिंग फीचर ऑफ द न्यू एक्ट, जस्ट वेट, न्यू एक्ट इन द गवर्नमेंट जॉब 3% to 4% कि जी आप पहला एक्ट पढ़िया सी, ठीक है, जोड़ा अपने रिजर्व सीट है, मतलब गवर्नमेंट जी आप गवर्नमेंट जॉब करने वास्ते डिसेबल परसन वास्ते कितना परसेंट कोटा हूँ 4%, ठीक है, उन्होंने इंक्रीज़ करता। जोड़ा अपना पहला एक्ट बनया सी परसन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 उसकी कितना परसेंट सी 3% सी, बट हूँ कितना करता इंक्रीज़ करता 1 और परसेंट 4%। तो क्वेश्चन इसी के उपर बन जाएगा, इनू नोट करो क्वेश्चन कितना हूँ रिजर्व सीट का रिजर्वड किन्ने परसेंट करता 4%, ठीक है। क्वेश्चन यही क्वेश्चन आ जाना पेपर कि किन्ने परसेंट इंक्रीज होया ना, तो 3 to 4% हो गया ना, पहला 3 से 1% इंक्रीज हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर आ सकता है, क्लीयर है जी, नोट कर सकते हो तुसी। अगला पढ़ो, द परसन विद एटलीस्ट 40% ऑफ डिसेबिलिटी आर इंटाइटल इन अ सर्टन बेनीफिट। अगर किसी इंसान च 40% डिसेबिलिटी हैगी आ तो ही ये सब्जेक्ट जड़िया भी कानून बनया है अपना एक्ट बनया तो उसकी लाभ ले सकता है, ठीक है। अगर कहता है अगला 7th पॉइंट है कि पनिशेबल, कि अगर कोई भी अगर तुसी किसी भी डिसेबल परसन नू अब्यूज़ करते हो, एक्सप्लोइट करते हो, ठीक है, किसी भी तरह का एक्सक्लूजन वगैरह करते हो, तुसी पनिशेबल हो, थानू जेल भी हो सकती है, थानू 10,000 का फाइन हो सकता है, ठीक है। ये जब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख सकते हो कि अगर तुसी किसी भी डिसेबल परसन नू पब्लिकली, ठीक है, पब्लिकली तुसी उहदी जिहड़ी राइट्स है उसनू एक्सप्लोइट करते हो या अब्यूज़ करते हो तो तुसी थानू सीधा 10,000 का फाइन होएगा, और थानू मे बी थानू पनिशमेंट 1-2 मंथ की पनिशमेंट हो सकती है। आई थिंक 3 मंथ की पनिशमेंट तो थानू हुंदी है, ठीक है। तो न्यू डिसेबिलिटी अगला पॉइंट है 8th पॉइंट, न्यू डिसेबिलिटीज़ कैन बी एडिड बाय नोटिफिकेशन। अगर आप किसी भी डिसेबिलिटी नू अगर इस ऐड करना है, ठीक है, जो अपना एक्ट बनया जो कानून बनया दिव्यांग बच्चों वास्ते राइट, ठीक है, वो अगर तुसी ऐड करना है तो तुसी नोटिस दे सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट नू तो आप उस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्लीयर है जी। आ वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अगला पॉइंट बोल रही है इनू नोट करना है, इस पॉइंट नू जस्ट इस पॉइंट नू बिल्कुल ही नोट करो, इस तो ही क्वेश्चन आना है, ठीक है। ये मैं कह तुहानू क्रॉस लाया, इसको नोट करो। कहना द नंबर ऑफ रिकोगनाइज्ड डिसेबिलिटी कंडीशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 to 21 इन दिस एक्ट, ठीक है। जो अपना एक्ट है कि पहला किन्नी सी 7 सी ना, जी आप पढ़िया 1995 वाला एक्ट सी, उस पहला कानून जो बनया सी दिव्यांग परसन कि 7 डिसेबिलिटी सी, बट हुण किन्नी होगी 21 डिसेबिलिटी होगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, इस थोड़ा 21 डिसेबिलिटी इंक्लूड्स है, अगे आप पढ़ांगे कि 21 है, ठीक है। पेपर च क्वेश्चन यही आना है कि 21 किन्नियां डिसेबिलिटी है, तो 21 और 21 दी 21 थोड़ा याद होनी चाहिए है, और पहली वाली जी पहले वाली वो भी 7 वालियाँ आते न्यू हुण जी डिसेबिलिटी है वो भी आनी चाहिए, और पेपर च क्वेश्चन यही आना है कि 21 थानू कोई दे देगा 4-5 और तुम दसना होएगा कि रिकोगनाइज़ करना पड़ेगा कि डिसेबिलिटी अगर हैगी है इसकी और नहीं है जी इनकरैक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला पॉइंट देखो, द न्यू लिस्ट ऑफ द रिकोगनाइज्ड डिसेबिलिटी इंक्लूड 3 ब्लड डिसऑर्डर्स, कि अपने किन्ने 3 ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है, एसिड अटैक्स, सारे इन्होंने में
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 3 ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਿਕਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਰੇ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ 21 ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ। ਫਸਟ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਦਿਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਲਿਪਰੋਸੀ ਕਿਉਰਡ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੇਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਫਾਰਵਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ 2016 ਵਾਲੇ ਐਕਟ 'ਚ ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ 2016 'ਚ ਐਕਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ 6 ਦਿਖਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਵਿਜ਼ਨ, ਲੈਪਰੋਸੀ, ਕਿਉਰਡ ਪਰਸਨਸ, हेयरिंग इंपेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डिफाजिज्म, ठीक है। अगली हैगी 7th वन है आपकी इंटेंचुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, जिन्होंने च दिमागी तौर से प्रॉब्लम है, जिन्होंने परसनस को मैंटल इलनेस, ठीक है। उस तो बाद है ऑटिज्म स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर हैगा इनू कहते ASD, ठीक है, ASD कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म तुहानूं पेपर च आ सकती है कि ASD की फुल फॉर्म की है, तुसीं पेपर च लिखना होएगा कि ऑटिज्म डिसऑर्डर है। ऑटिज्म डिसऑर्डर हुंदा है जिहड़े बच्चे सोशली नहीं कनैक्ट कर पाते, कम्यूनीकेट नहीं कर पाते, ठीक है। एक अपने न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर है, कोई इफेक्ट है कि, ठीक है, ये ग्रोथ नहीं हो पाती उन्होंने, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, सो दैट कि वो अपने उन्होंने कुछ फंक्शनस कुछ बॉडी के पार्ट प्रॉपर फंक्शन ही नहीं करते, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर च आया जो कम्यूनीकेट करन च प्रॉब्लम, थोड़ा कम्यूनीकेट करन च हैजीटेट करते हैं कि नहीं असी कम्यूनीकेट नहीं करते, थोड़ा अपने विच रहिंदे ने, ठीक है। इंट्रोवर्ट परसनस कह सकते हैं आप, थोड़े इंट्रोवर्ट होंदे ने ऑटिज्म स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर जिन्हां नूं हुंदा है, ठीक है। अगला देखो सेबरप्लासी न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है, डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि थोड़े नर्व्स च कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ी जी मूवमेंट्स है, ठीक है, जी थोड़े हत्थ पैर की जी आप मूवमेंट्स करते हैं इन्हां च थोड़ा इफेक्ट करता है, ठीक है। उस तो बाद है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये आप कुछ जड़ियाँ मैं दसांगी, ठीक है, ये आप कुछ डिटेल विच भी पढ़ांगे पेपर च ना। कई बार जिवें PTET हुंदा है, कोई नैट का एग्जाम है, तुहानूं डिटेल पुछ लेंदे ने, ठीक है। PTET या HTET तुसीं दिंदे हो तुहानूं डिटेल विच पुछ लेंदे ने कि इसदा की इफेक्ट है, फिर तुहानूं थोड़ा डिटेल विच भी पढ़ांगे, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशनस कि कुछ अपने थोड़े नर्व्स दे विच कुछ, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड विच कुछ प्रॉब्लम्स होनी है, ठीक है। स्पैसिफिक लर्नर डिसेबिलिटीज़, स्पैसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जिवें डिस्ग्राफिया, डिसलैक्सिया, पता है ना डिसलैक्सिया मतलब रीडिंग च कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो डिस्ग्राफिया बच्चे नूं कोई राइटिंग च कोई प्रॉब्लम होगी, राइटिंग च प्रॉब्लम होगी, ठीक है। डिसकैलकुलिया मतलब बच्चे नूं कैलकुलेशन च प्रॉब्लम होगी, आप करांगे अगे, ठीक है। ये सारी डिसेबिलिटीज़ जिन्नी भी हैगी आप हौली हौली एक एक चीज़ नूं डिटेल विच करांगे, ठीक है। मल्टीपल सेरोसिस तो आप अगे मैं अगे तुहानूं चंगी तरह इसके बारे पढ़ावांगी, ठीक है। स्पीच एंड द लैंगुएज डिसेबिलिटी, स्पीच मतलब किसी नूं बोलन च प्रॉब्लम होवे, ठीक है। लैंगुएज डिसेबिलिटी जिवें थोड़ा मतलब थोड़ा बंदा करता नहीं हिचकिच करके बोलता है प्रॉब्लम, ठीक है। थैलेसीमिया 16 इज थैलेसीमिया हीमोफीला सिकल डिजीज़, ये थोड़ी तिने ब्लड डिसऑर्डर ने, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि 3 दसिया सी ना ब्लड डिसऑर्डर के 3 दी 3 तुहानूं थैलेसीमिया होमोफीलिया सिकल डिसीज़, ठीक है, ठीक है। 19 देखो मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है। 21 इज़ एसिड अटैक विक्टम्स, ठीक है। 21 इज़ पार्किंसन डिजीज़। तो
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 21 ਦੀ 21 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਦੀ 21 ਸਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਰਸਟ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਜ ਲੋ ਵਿਜ਼ਨ, ਥਰਡ ਇਜ਼ ਲੈਪਰੋਸੀ ਕਿਉਰਡ ਪਰਸਨ, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डिफाजिज्म, ठीक है, इंटेंचुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेबरप्लासी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, स्पेसिफिक लर्नर डिसेबिलिटी, मल्टीपल सिरोसिस, स्पीच एंड द लैंग्वेज डिसेबिलिटी, थैलेसीमिया, हेमोफिला, सिकल डिजीज, मल्टीपल डिसेबिलिटी, एसिड अटैक विक्टम, पार्किंसन डिजीज़। क्लीयर है जी। आ 20 21 ਦੀ 21 ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੇਪਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹੀ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ HTET ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ CTET ਦਾ ਜਾਂ PTET ਦਾ ਪੇਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਨੈਟ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਪੱਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਡਿਸऑर्डर्स 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਸਟ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ। ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਡਿਸऑर्डर ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਆਣਾ ਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸऑर्डर ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਲੱਡ ਡਿਸऑर्डर ਹੈ, ਨਰਵ ਡਿਸऑर्डर ਉਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ठीक है, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸऑर्डर ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬਲੱਡ ਡਿਸऑर्डर ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੱਡ ਡਿਸऑर्डर passed down through the families in which the body makes abnormal forms and inadequate amount of hemoglobin। ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਲੱਡ ਡਿਸऑर्डर ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈਮੋਫੀਲਾ। ਹੋਮੋਫੀਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਡਿਸऑर्डर ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਆਖਣਾ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕਲੌਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਵਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੌਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮੋਫੀਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਮੋਫੀਲੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੌਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੋਮੋਫੀਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਕਲੌਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਈ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਹੋਮੋਫੀਲੀਆ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਮੋਫੀਲੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੋਰ ਬਲੱਡ ਡੂ ਨਾਟ ਕਲੌਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੈੱਡ ਜਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਡਿਸऑर्डर ਦੈਟ ਇਫੈਕਟ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਐਂਡ ਦ ਸੈਲਸ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਿਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਡਿਸऑर्डर ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਬਲੱਡ ਡਿਸऑर्डर ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ, ਹੋਮੋਫੀਲਾ, ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ disorder that affect the movement, cause stiffness or slowing of the movement। ਕਿ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਰਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਵਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਚਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਸਟਿਫਨੈਸ ਵਗੈਰਾ, ਸਲੋਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਨਾ ਇਹ 3 4 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ।
और इन्हां चों ही क्वेश्चन आंदा है। अगला देखो, अगला है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज दैट कॉज द प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड द लॉस ऑफ मस्कुलर सैल। सपोज अपना जो मस्कुलर कि थोड़े जो मसल्स है ना, जो सैल होंगे अगे लीगामेंट वगैरह होंगे, मसल जो मास होंगे, ठीक है, मसल का वो की होंगे थोड़ा घट होना स्टार्ट हो जाता है। जी सपोज मैं, मेरी ड्राइंग वैसे इन्नी अच्छी है नहीं, बट मैं फिर भी थोड़े लिए जिस सपोज थोड़ी आम है, जिमें कि मस्कुलर मास्क है, जिमें मस्कुलर होंगे ना लीगामेंट्स वगैरह बड़े होंगे एवं करके ना, आई डोंट मेरी थोड़ी ड्राइंग हैवी है, ये प्रॉपर थोड़ा मस्कुलर मास्क बने है ना, एवें होंगी है। अगर तुसी देखोगे जिन्हों अगर किसी इंसान को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, देखो प्रॉपर एक मैं दोबारा थोड़े लिए बनानी हाँ, सपोज ये थोड़ी एक बाजू है, ठीक है, अगर थोड़ा आ थोड़ा लीगामेंट्स है एवें, ठीक है, मस्कुलर मास कि थोड़े मस्कुलर्स है, ठीक है, एवें होंगे हैं। अगर किसी भी बच्चे को अगर, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, दे मसल्स किवें बनते हैं, जिवें आप थोड़ी एक बाजू है, ठीक है, तो वो मसल्स की होंगे, मास जो मास है और लॉस होना स्टार्ट होता, मस्कुलर मास एवें छोटा जिहा बनता है, थोड़ा थिन होना स्टार्ट हो जाता है, वीकनेस हो जाती है थोड़ी लीगामेंट्स वगैरह से, ठीक है, मास नहीं बनता। मांसपेश इनू सपोज आप हिंदी च वैसे इनू कहते मांसपेशिया प्रॉब्लम होना, जिन्हों की मांसपेशिया प्रॉब्लम होंगी ना उन्होंने कहते हैं, ठीक है जी। अगला है मल्टीपल सिरोसिस। मल्टीपल सिरोसिस किया इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ दैट इफेक्ट योर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिकल नर्व्स इन योर आईज की, ठीक है, मल्टीपल की थोड़ियाँ देखो किन्ना थोड़े ब्रेन भी इफेक्ट कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड नू कर रही है। अगर स्पाइनल कॉर्ड ही थोड़ी, ठीक है, अगर स्पाइनल कॉर्ड नहीं अच्छी तरह प्रॉपर वर्क करेगी तो मैसेज नहीं ब्रेन में जाएगा। ऑप्टिकल नर्व्स जी अपनी आईज च नर्व्स नहीं होंगे वो उसनों कहते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हैगी सारिया जिन्हें भी मैं थोड़ी डिसेबिलिटी कराई है, तो सारा याद करना है। थैलेसीमिया, होमोफीलिया, सिकल डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड मल्टीपल सिरोसिस, ठीक है, ये सब कुछ सानू याद होना चाहिए। और जिन्नी भी जिन्हें भी थानू 21 कराई है एटलीस्ट थानू टिप्स अपनी होनी चाहिए है, ठीक है। मैं दोबारा एक बार दस दी मेन पॉइंट क्वेश्चन ना पेपर से यही क्वेश्चन आ जाने, देखो तुसी देखियो पक्का, ठीक है, तुसी कहोगे कि मैम हाँ क्वेश्चन पेपर आया, पेपर क्वेश्चन आए, देखो पेपर च क्वेश्चन की आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो अपना की बन सकता है, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि डेट किहड़ी है, तुसी डेट याद रखनी है कि कदों ये फोर्स च आया, किहड़ा आ सकता है कि 30 दिसंबर 2016 च आया, ठीक है, किहड़े एक्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन तो अपनी डेट आ गई, फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया किहड़े एक्ट में रिप्लेस करके आया, PW एक्ट में रिप्लेस करके आया, ठीक है। फिर इस की है 60 to 18 ईयर्स तक किसने किया कि तड़ी कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए है, ठीक है, और क्लीयर है जी। उस तो बाद एक क्वेश्चन आ सकता है हुण किन्ने परसेंट का कोटा है 3 to, ठीक है, 3 to 4% कोटा, मतलब 3 तो करके उन्होंने 4% का गवर्नमेंट का कोटा रखता, क्लीयर है जी। उस तो बाद आ सकता है किन्नियां डिसेबिलिटीज़ से हुण करिए 21 डिसेबिलिटी की करी है, और 2021 की जिन्नी भी डिसेबिलिटी है सानू सारियां याद होनी चाहिए टिप्स से, ठीक है, प्रॉपर याद होनी चाहिए। थैलेसीमिया, होमोफीलिया पूछ सकता है कि केड़ा ऑर्डर है, डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है, किहड़े 3 ब्लड डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया, होमोफीलिया, सिकल डिजीज़, ठीक है, और पार्किंसन पूछ सकता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आ सकती है, मल्टीपल सिरोसिस आ सकती है, ठीक है। पेपर च क्वेश्चन पिछली बार आई थिंक थैलेसीमिया, होमोफीलिया तैयार रखा सी, ठीक है, तुसीं देखोगे होमोफीलिया पूछ लैंदा है की हुंदा होमोफीलिया, किहड़ा डिसऑर्डर है, ठीक है, जब क्वेश्चन आ जाएगा 3-4 थानू बचेगा कि विच इज़ इनकरैक्ट अबाउट दैट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुसीं करना है और चंगी तरह इसनों एक बार दोबारा तुसीं ग्रो थ्रू होना है। और जो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैनू कमेंट करके दसना है कि मैनू इस प्रॉब्लम है। अगर कुछ भी तुहानू लगता है कोई डाउट है तो प्लीज़ मैनू कमेंट जरूर करना है कि मैम मैनू इस डाउट है, तो ठीक है, फिर आप अगला अगला टॉपिक आप कल करांगे, आप कल सर्व सिक्ख्या अभियान करांगे इंक्लूसिव एजुकेशन सैटअप च, ठीक है। थैंक यू सो मच।